So, good morning, dear students. How are you all? Last day we had discussed that we had started to discuss revision of this periodic trends in the properties of elements in a periodic table. Okay, in that part, last day we had discussed about the one of the property, that is atomic size. In that part, we had discussed that atomic size is depends on this atomic radius. Atomic radius means that is the distance. Suppose this is the structure of an atom, this is the nucleus and this is the cells. It is the cell. Another is there, here it is another one. There are two atoms. So this is the atomic radius. This is the distance from this nucleus to the outermost orbit. Nucleus to the outermost orbit. This is called this atomic radius. And this radius depends on two things. This atomic radius depends on two things. The first was number of cells. Number of cells. Second was this nuclear charge. Nuclear charge. Number of cells means if the number of cells will increase, size will also increase. If the number of cells will increase, suppose a cell is containing, an atom is containing 2 cells. Another atom is containing 4 cells. So the atom that is containing 4 cells, it will contain this bigger size in comparison to the atom that is containing only 2 cells. Okay. Second thing, if the number of cells are equal, in that case you will see the nuclear charge. Means the nuclear is how much charge a nucleus containing. As we know, nucleus contain 2 particles. One is proton, second is neutron. Neutron is having no charge, so nuclear charge will be because of this number of proton. So if the number of protons will be more, it will contain this more nuclear charge. And because of this nuclear charge, this nucleus is going to attract these outermost electrons, that are the electrons that is present in the outermost cell. So if the nuclear charge will be more, it will attract the electrons with more efficiency. Okay, and the nuclear size will decrease. Suppose this is the atom, it is containing this 15 electron, and it is the atom, it is containing, if the same atom and it is having the same cell, suppose it is also having the 3, like here it is 1, 2 and 3, here it is 1, 2 and 3. But it is having 15 electron, it is having 18 electrons. So whose size will be lesser, that is this 18, because इसके पास 18 न्यूट्रॉन्स हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. इसके पास ओनली इट इज हैविंग 15 इलेक्ट्रॉन्स टू अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो ये ट्रेंड हमने पढ़ा था कि जब हम एक पीरियड में व्हाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे इंक्रीज हो जा रहे हैं, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है. ठीक है, इसकी वजह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज विल डिक्रीज अप टू फ्लोरीन, बट एक्सेप्ट दिस नियॉन, क्योंकि नियॉन एक इनर्ट गैस है, वहां पे सिमिलर न्यूक्लियर चार्ज भी हैं और सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. ठीक है, तो दे विल रिपेल. अदरवाइज अप टू फ्लोरीन द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज. मींस लिथियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा है. ठीक है. दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ा था, अगर हम इस पीरियड की बात करें तो जितने नंबर ऑफ सेल्स लाइक लिथियम, अगर हम कन्फिग्रेशन भी यहाँ पे साथ साथ में देख लें इसका कन्फिग्रेशन, सो व्हाट वी विल गेट, we are going to see this so see it is having this 3 electrons. तो इसके पास जो this is the nucleus, this is the first cell and it is the second cell. इसमें it will contain 2 electrons and in this it is 1 electron. Here it is beryllium nucleus, this is the first cell, it is the second cell. In the first it will contain 2, in the second also it will contain 2. For boron
it will, this is nucleus, this is the first cell, it is the second cell. It will contain 2 and this next cell will contain 3 electrons. If we are talking about this oxygen, it is this first cell, it is second cell. 2 and it will contain 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. If we will write this electronic configuration, then 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2, 6, 2, 7, 2 and 8. This is the electronic configuration. Okay. So on the basis of, and this is the डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स सब में बराबर हैं. इसमें भी 2 सेल्स हैं, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल, सारे में 2 सेल्स हैं. तो नंबर ऑफ सेल्स इज विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ पीरियड. अगर ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन किस पीरियड का मेंबर है, तो इट विल बी सेकेंड पीरियड. वाई? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग दिस 2 सेल्स, 2 and 5. 2 ही सेल्स में इसके सारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं. सो इट इज द मेंबर ऑफ दिस सेकेंड पीरियड. ओके, इट इज द मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड. ऑक्सीजन इज ऑल्सो सेकेंड पीरियड. लेकिन अगर पूछा जाए कि सोडियम किस पीरियड का मेंबर है, सोडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 11, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2, 8 and 1. कितने सेल्स बन गए यहाँ पे? यहाँ पे 3 सेल्स बन गए, 2, 8 and 1. इट इज द K, L and M. दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो इट इज द मेंबर ऑफ दिस थर्ड पीरियड. सोडियम एक थर्ड पीरियड का मेंबर है, जबकि ये सारे क्या है, ये सेकेंड पीरियड के. कैसे हमको पता चलेगा? बाय दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. द नंबर ऑफ cells that will be formed will determine its number of period, to which period it belongs. It is very important question that is oftenly asked, okay, from this chapter. So by this method we can determine the number of period. Okay, तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी. एक चीज और हमको पढ़ना था कि डाउन अ ग्रुप लिथियम के नीचे आपका है सोडियम, इसके नीचे है आपका पोटेशियम. इट इज 11, इट इज 19. तो यहां पे अगर हम बात करें तो सोडियम का कन्फिगरेशन होगा 2, 8 and 1. यहां पे होगा 2, 8 then 8 and it is 1. ओके, तो ये देखो सोडियम किस ग्रुप का, किस पीरियड का है? इट विल बी ऑफ मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड. थर्ड. इट इज पोटेशियम इज ऑफ फोर्थ पीरियड. कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. जितने सेल्स बनेंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, तो हमने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज घटती जा रही थी व्हाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड एंड इट्स अपोजिट विल बी हियर. क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं. यहाँ पे 2 सेल था, यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे 4 सेल है. तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज ऑब्वियसली इट विल बी इंक्रीज्ड. मींस इफ वी विल डिस्कस अबाउट दिस लिथियम, पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम, व्हिच विल बी दिस बिगर साइज, इट इज द पोटेशियम. ओके, क्यों? क्योंकि इसके पास 4 सेल्स हैं. लिथियम के पास देयर इज ओनली 2 सेल्स. गॉट इट? तो ये प्रॉपर्टीज हमने कल पढ़ रखी थी. दैट इज द एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो घटती जाएगी. एटॉमिक साइज घटेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ेगी. ठीक है, ये चीज हमने कल डिस्कस किया था. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी. ओके, वैलेंसी प्रॉपर्टी दैट वी हैड डिस्कस इन योर क्लास 9 इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम to accept, donate or to share the electrons to become stable. मतलब उसको स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, डोनेट या शेयर करना पड़ेगा वही उसके क्या हो जाएंगे? वैलेंसी कहलाएंगे. ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट, एक्सेप्ट या शेयर करेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मींस द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल. लाइक अगर हम बात करते हैं लिथियम की, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया लिथियम का? इट इज 1. बेरिलियम के केस में इट इज 2, it is 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the valence electron. अगर हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन across a period, तो लिथियम का है 1, सोडियम का है 1, पोटेशियम का भी कितना है? 1. ठीक है, तो these are the number of valence electrons. Means number of electrons present in the outermost cell are called as valence electrons. लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, नियॉन का इट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इट इज हैविंग. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट डिटरमाइन द वैलेंसी. हमने अभी डिस्कस किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी. तो वैलेंसी का केस क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया? हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करा रखा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिटरमाइन द वैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा था कि अगर इसके पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दे टेंड टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन
एंड बिकम दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और उनकी वैलेंसी होती है पॉजिटिव, और वो वैलेंसी कितनी होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 1 वैलेंसी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 वैलेंसी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 3 वैलेंसी होगी। रिवर्स ऑफ दैट, द केस ऑफ दिस नॉन मेटल्स, दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन लाइक दिस 7, it will accept 1 electron, so valency will be 1, its valency will be 2 because it will accept 2 electrons, its valency will be 3 because it will accept 3 electron because valence electrons are 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये ना तो डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इट विल बी दिस 0 वैलेंसी, ठीक है। बाकी बचा कार्बन, इट्स वैलेंसी इज 4। तो दिस इज द केस ऑफ वैलेंसी। अब हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है जब हम एक पीरियड में या एक ग्रुप में, पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो क्या पीरियोडिसिटी रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लेट अस सी, इफ वी विल टॉक अबाउट दिस लिथियम देन बेरिलियम, इट्स वैलेंसी इज 1। अगर हम बात करते हैं सिर्फ वैलेंसी की, इफ वी विल डिस्कस अबाउट दिस वैलेंसी, तो इट्स वैलेंसी विल बी 1। लिथियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 बिकॉज इट विल डोनेट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वैलेंसी होगी 3, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इट इज 4, अगेन इट्स वैलेंसी इज 3, देन इट्स वैलेंसी इज 2, इट्स वैलेंसी इज 1 एंड इट्स वैलेंसी इज 0। आई होप कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बिकॉज इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा क्योंकि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, ये 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम ट्रेंड देखते हैं क्या हो रहा है। While moving across a period from left to right, the valency first increase. You can see 1, 2, 3, 4. कहाँ तक increase हो रही है? It will increase up to 4. Then 3, 2, 1, then 0. तो क्या ट्रेंड मिला हमको कि वैलेंसी पहले 1 से 4 तक इंक्रीज हो रही है, फिर 4 से फिर डिक्रीज हो जाएगी अप टू 0, ठीक है। दिस इज द ट्रेंड इन अ पीरियड। वैलेंसी will increase up to 4, 1 to 4, then it will decrease up to 0, then 4 से फिर 3, 2, 1, 0, ठीक है। This is the trend in the valency in the case of period, across a period. तो वैलेंसी फर्स्ट it will increase, then it will decrease. अगर हम बात करते हैं across a period, ठीक है, तो पीरियड की हम बात करते हैं तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, since all are having the same number of valence इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो वैलेंसी विल रिमेन अनचेंज इन अ ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो क्या होगा, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबके पास सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। गॉट इट? तो दिस इज द केस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी एक और प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज के साथ, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। हाउ टू डिटरमाइन द ग्रुप, सॉरी पीरियड हमने पढ़ लिया है। हाउ टू डिटरमाइन पीरियड दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास अलॉन्ग विद सम अदर प्रॉपर्टीज। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आपकी तैयारियां चल रही होंगी और आप उसको बंद मत करिएगा, आप उसको कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स होंगे एक महीने में। सो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।